Now today let's start with chapter number 14, the Indian Constitution. In this chapter we will study about constitution. ठीक है, हम फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों होती है और कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. Now constitution, the constitution is a fundamental legal document that contains rules according to which the government of the country function. Constitution क्या है? एक fundamental legal document है, ठीक है, जिसके अंदर rules होते हैं according to which the government of the country functions. These rules or laws are called basic law. These laws are superior to all laws of the country. That is why law written in the constitution act as a source according to which rules and regulation for the governing country were framed. Every law enacted by the government has to be conformity with the constitution. The constitution is constantly amended and it evolves according to the needs, requirement and aspiration of the people and functioning of the institution. जो आपका constitution है हम constantly amend भी कर सकते हैं, उसमें नई नई चीजें भी डाल सकते हैं by the constitution amendment. ठीक है, according to the needs, requirement और aspiration of the society and functioning of the institution. Now जो Indian Constitution है उसने was passed on 26 November 1949 और इफेक्ट में कब आया था? 26 January 1950. The need for a constitution. Every country needs a constitution. A constitution has even more importance in a democratic setup because it defines the power of the government, so that it does not misuse them and violate the rights of the citizen. जिससे लोग इसको misuse ना करें और जो भी हमारे rights है citizen के उसको violate ना करें. The constitution take all precaution to safeguard the rights of citizen, as the right of citizen are of utmost importance in a democratic government system. ठीक है, and the constitution act as a guardian of these fundamental rights. और जो आपका constitution है वो किसकी तरह फंक्शन करता है? एज अ गार्जियन. वो क्या है? गार्जियन है हमारी फंडामेंटल राइट. जनरली गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड ऑफ वेरियस ऑर्गन विद स्पेसिफिक पावर सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस पावर एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम इंक्रोचिंग. इन इंडिया लेजिस्लेचर्स मेक लॉज, द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट्स देम एंड जुडिशरी सेफगार्ड. लेजिस्लेचर क्या बनाता है? 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ठीक है, लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाता है, एग्जीक्यूशन कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. और जो जुडिशरी होता है वो सेफगार्ड करता है, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. Another important function that constitution perform is to ensure that dominant group does not use its power against less powerful people or group. The constitution contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is largely available. ठीक है, जो minorities हैं वो excluded नहीं है. ठीक है. Now, framing of Indian Constitution. The Constitution of India was framed by Constituent Assembly. जो Constitution of India है वो किसने फ्रेम करा था? Constitution Assembly ने, जो किसके अंडर सेटअप हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946. ठीक है, जो Constitution Assembly थी उसमें 389 मेंबर्स थे, 13 कमिटीज थी. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स ऑफ दिस कमिटी अ ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड. और जो ये ड्राफ्ट है वो किसने बनाया था? 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था. और चेयरमैनशिप किसकी थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर. और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसे 2 years 11 month और 18 days लगे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज नॉट एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड द बेस्ट फीचर्स ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट ऑफ UK, USA, आयरलैंड और कनाडा. अब हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की. आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू आवर हेड्स आफ्टर अ फेयरली लॉन्ग बैटल विद फॉरेन इंपेरियलिस्ट. Our freedom fighters had a certain cause and ideas in their mind, which they tried to realize soon after they won independence. They have incorporated their ideas. इन्होंने अपने ideas को incorporate करा था. And the preamble of the Constitution contains glimpses of same. जो आपका preamble है वो उसके अंदर आपके सारे जो glimpses है इसके वो आपको मिलेंगे Constitution के. Now silent features of Constitution. सबसे पहले जो गवर्नमेंट है वो कैसी है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब 1 at सेंटर एंड 1 at स्टेट. कैसी गवर्नमेंट मिलेगी? फेडरल गवर्नमेंट, एक सेंटर पे और एक स्टेट. ठीक है. इन इंडिया द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है,
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट. 3 लिस्ट मिलेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन में जितने भी यूनियन के काम होंगे, स्टेट में जितने भी स्टेट के काम होंगे. अगर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट की, कॉन्करेंट लिस्ट में आपको दोनों स्टेट यूनियन दोनों के मिल सकते हैं. ठीक है. द यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स है जो नेशनल इंपॉर्टेंस के, जैसे कि आपके डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया, ठीक है, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, रेलवे. ऑन दिस सब्जेक्ट ओनली सेंट्रल लेजिस्लेटर कैन मेक लॉ. 97 सब्जेक्ट्स है जिसमें आप जिसके भी नेशनल इंपॉर्टेंस है वो आपके यूनियन लिस्ट में होंगे और खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बना सकती है. वहीं हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं लोकल इंपॉर्टेंस के जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉ बना सकती है. जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस हो गया, जेल्स हो गया, वो किसमें आता है आपका लिस्ट में. कॉन्करेंट लिस्ट में आपके 47 सब्जेक्ट है जो कॉमन कंसर्न दोनों स्टेट गवर्नमेंट के भी और सेंटर के भी, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी. पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट, हाउएवर इफ देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ओवर अ सब्जेक्ट गिवन इन कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल. देखो अगर स्टेट लॉ और सेंट्रल लॉ के बीच में क्या हो जाता है, कॉन्करेंट वाली को लेके झगड़ा हो जाता है, तो कौन प्रिवेल करेगा, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा. दूसरा है आ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. जो हमारा इंडिया है वो कैसी है, सॉवरेन कंट्री है, ठीक है. इट मीन दैट इज फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल. इट कैन फ्रेम इट्स ऑन पॉलिसीज. इट कैन नॉट बी डेडिकेटेड बाय अदर फॉरेन कंट्री. India has a democracy. People of India elect the government at all level by the method of universal adult franchise. हम free हैं to select our leader. India is also a republic. This means head of the nation president is elected by the people. जो head of the nation है, जो हमारे presidents हैं, ठीक है, they are elected by the people and our president is not hereditary rule. जैसे ब्रिटिश मुनान में क्या था, hereditary होता है, वैसे बेटा और उसका लड़का फिर उसका वहां का रूलर बनेगा, फिर उसका लड़का बनेगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोग इलेक्ट करते हैं. नाउ आर रिटन एंड लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और सबसे ज्यादा बड़ा है, ठीक है. और ये किसने फ्रेम करा है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने. इसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल. कितने हैं, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल. ये सबसे ज्यादा लेंथियस्ट है. नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए हैज 7 आर्टिकल. यूएसए के 7 आर्टिकल्स है, चाइना के 138 है और जापान के कितने हैं, 103. और अगर हम कनाडा की बात करें तो 107. नेक्स्ट इज जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. मतलब पीपल क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, ठीक है. इन इंडिया देयर आर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव. वन इज एट स्टेट लेवल एंड अनदर इज एट नेशनल लेवल. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, सोशलिस्ट है और सेकुलर है, ठीक है. सोशलिज्म इज टू इम्पॉर्टेंट नेशनल गोल. It means that the state will strive to remove inequality of income or standard of living. The major objective of socialism is to provide equal opportunity to all. Socialism का मतलब यही है कि हम equal opportunity देंगे हर एक member of the society को. किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करें. In our society, there are many castes and subcastes. The increasing disparity between haves and have-not create immense inequality. The people belonging to the section of society are increasingly getting frustrated and dissatisfied. Subsequently, this leads to situation of conflict and tension. Therefore, it is important to provide socio-economic equality to all. इसलिए जरूरी है कि हम सबको सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करें. The 5-year plan has been made to our country ahead on the path of economic process. जो टर्म सेकुलर है इसका मतलब है ऑल रिलीजन्स कमांड इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द स्टेट. इन इंडिया नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड अगेंस्ट इंडिविजुअल. देखो इंडिया में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. डिफरेंट ग्रुप सेक्स कम्युनिटीज आर फ्री टू प्रैक्टिस प्रीच एंड फॉलो एनी रिलीजन. एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ. Everybody enjoys equal right, no matter to which faith, caste, creed or she belong. ठीक है, हर कोई अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है. ऐसा नहीं है कि आप अपना रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते. Universal adult franchise. The Constitution provides for universal adult franchise. It means that every citizen who is 18 year or above can vote. ठीक है,
और यही ऐसा अधिकार है हमारी कंट्री में जो सबके पास इक्वल है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन ऑफ द लॉ, दैट इज लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी जो उसको देखते हैं। ठीक है, हमें न्याय दिलवाते हैं। लेजिस्लेचर रेफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एंड जुडिशरी रेफर टू सिस्टम ऑफ कोर्ट एंड जस्टिस इन द कंट्री। जो जुडिशरी होती है वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करती है। ठीक है, this way there is a balance of power between 3 organs. Constitution always provides for restriction on the power of elected representative in order to misuse of power. देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं जिससे लोग अपनी पावर को ओवरयूज ना करें। ठीक है, thus constitution safeguards people against autocratic use of resources, और वो सेफगार्ड करता है लोगों को किसके अगेंस्ट? ऑटोक्रेटिक यूज ऑफ रिसोर्सेज के। नाउ फंडामेंटल राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन बेसिक राइट्स टू सिटीजन, और इनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट। ये जो राइट्स है दे आर एसेंशियल एंड नॉट ओनली रन आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन इंडिविजुअल सिटीजन टू डेवलप हिज ऑल अराउंड पर्सनैलिटी। As they are fundamental to every citizen life, these are called fundamental rights. These rights protect the citizens against arbitrary and absolute use of power. जैसे आप देख रहे राइट टू इक्वलिटी, देखो हर एक इंसान लॉ के एवरी ऑल द पर्सन आर इक्वल बिफोर लॉ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। All person have equal access to public places. All person has equal access to employment opportunity. सब इक्वल है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए। राइट टू फ्रीडम, every our constitution has provided every citizen right to freedom. According to the right, citizen has right to freedom of speech, expression, right to form association, right to move freely. He can reside in any part of the country. Right against exploitation, right to seek protect the weaker section against exploitation. It prohibits trafficking of human beings and beggars. Right against exploitation also imposes restriction. जो right against exploitation है वो restriction लगाता है कि जो बच्चे 14 years से कम एज के हैं वो वर्क नहीं करेंगे फैक्ट्रीज में, माइंस में और hazardous jobs में। Right to freedom of religion, India is known for its multi-religion and ethnic culture, जिसे हम secular nation कहते हैं। It means that all religion are equal before law. There is no state religion. देखो हर एक religion इक्वल है, कोई एक स्टेट रिलीजन नहीं है। देयर इज नो स्टेट रिलीजन। ठीक है, इंडिया हैज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रीच हिज और हर रिलीजन। द कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्म्स द पीपल ऑफ इंडिया टू फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। अपने चॉइस के आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक वे, उसको अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रीच कर सकते हो। ठीक है, ये कुछ 3 फ्रीडम बता रखे हैं लोगों को। Right to constitutional remedy. It implies the right of people to move to High Court and Supreme Court. देखो अगर किसी के राइट का वायलेशन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने इंसाफ के। ठीक है, he or she can challenge any act of government which she thinks against the fundamental right. अगर जो भी चीज आपको लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। The court can issue various writs and order for protection of fundamental rights. We have cultural and educational right. Every cultural group have freedom to preserve and promote their language and tradition. Every cultural group has right to set up and maintain its educational department. हर एक रिलीजन के पास, सबके मतलब हर एक इंस्टीट्यूशन के पास राइट है कि वो अपना इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते। ठीक है, नाउ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये जो है जो डायरेक्टिव्स हैं जो गवर्नमेंट क्यों लेके आई थी, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ पीपल। दीज प्रिंसिपल हैव गवर्नमेंट टू इम्प्लीट सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द पॉवर्टी फॉर द मासेस, और उनको क्या इंश्योर करे? इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोस्पेरिटी इंश्योर। फंडामेंटल ड्यूटीज, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड फंडामेंटल ड्यूटीज। इसको ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 से। ठीक है, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली थी, अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अप टू डू, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको अपने नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को क्या करना है? रिस्पेक्ट करना है।
टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियाज, विच आपको चेरिश करना और फॉलो करना है नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, जो आपके वैल्यू, आपको जो प्रिजर्व है, हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करना है, वैल्यू करना है। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट नेचुरल एनवायरनमेंट, आपको प्रोटेक्ट भी करना है और इम्प्रूव भी करना है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे आपके फॉरेस्ट हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, इनको। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, हर एक रिलीजन या लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ आपको हार्मनी प्रमोट करने, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड भी प्रमोट करनी। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that nation constantly rise to the higher level. To develop scientific temper, spirit of injury and reform. To safeguard public prosperity and to abjure violence. आपको public property को भी क्या करना है, safeguard करना है। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। Now we will start with the exercise of the chapter, evaluation. Very short answer type question. What is constitution? Constitution क्या है, आपको वो लिखना है। Which organ of the government is responsible for making law? कौन है? Legislature. Which institution framed the Constitution of India? किसने बनाया? Constitution Assembly ने। Write the names of 3 different lists of subjects through which power of the central and the state government is divided. State union list, state list or concurrent list. Now short answer type question. Why is the Constitution even more important in democratic country like India? ठीक है। What are directive principles? Next is long answer. Throw the light on silent features. जो अभी मैंने आपको 8 to 9 silent features बनाया, तो आप 6 to 7 लिख सकते हैं। Write the note on fundamental rights and duties provided by the citizen of Indian Constitution. जो भी rights और duties मिली हैं वो आप लिख सकते हैं। Now tick the correct option. The Constitution of India was passed कब गया था? 26 January 1949. Which of these organs makes law? कौन बनाता है? Legislature. The Constitution and Assembly of India was established under Cabinet Mission Plan of India. ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.